تمہاری خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ خالہ جان کا؟ یا اللہ، کیسے؟ ہارٹ اٹیک آیا ہے اسے، چلو جلدی چلو۔ وہ رو رہی تھی اور اسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھا بھی رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھی کہ ماں کو گلے سے لگایا گیا تھا، سر تھپکنے لگا تھا۔ امی ریلیکس، اتنا کیوں رو رہی ہیں آپ؟ جانتی تو ہے نا کہ خالہ جان کی طبیعت بہت پہلے سے خراب تھی۔ ہاں، مگر تم جانتے ہو نا، اس کا انتقال یوں ہی نہیں ہوا۔ کسی نے اتنے صدمے نہیں سہے جتنے میری بہن نے سہے ہیں۔ چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ کچھ ہی دیر میں کپڑے تبدیل کرتا ہوا ماں کو گاؤں کے لیے لے کر روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ یہ غم اس کی ماں کے لیے کتنا شدید تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، اس کی خالہ گلبانو دنیا چھوڑ گئی تھی۔ ہارٹ اٹیک آیا تھا انہیں۔ ان کے شوہر کا انتقال تب ہوا تھا جب ان کی بیٹی صرف 5 سال کی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال میں گھر میں رہنے نہیں دیا اور کوئی حق بھی نہیں دیا، کیونکہ بیٹی تھی تو یہ کہہ کر نکال دیا کہ یہ ہمارا وارث نہیں ہے، اسی لیے تم اسے لے جاؤ۔ وہ ان کی اولاد تھی اور انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر اس کو بڑا کیا تھا، مگر وہ بھائیوں کے در پر آ بیٹھی تھی۔ بھائی تو اچھے تھے، مگر بھابھیوں نے ان کا ساری زندگی جینا حرام کر رکھا۔ صرف ان کا نہیں، ان کی بیٹی کا بھی۔ اس کے حق کھاتے رہے۔ گلبانو کے بابا نے ان کے نام بہت سی جائیداد کر رکھی تھی، مگر بھابھیوں کی باتوں میں آ کر بھائیوں نے ان کے خوب حق مارے تھے۔ شہیر سکندر کی امی زارا سکندر ان ساری صورتحال سے واقف تھی۔ وہ ماں کو دیکھے جا رہا تھا جو بہن کی میت پر رو رہی تھی۔ پھر اس کی نظر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ بال آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، تبھی لڑکی کی آنکھیں اٹھی۔ وہ جیسے ٹھہر گیا، نیلی آنکھیں سمندر کی طرح گہری تھی۔ شہیر نے سر جھٹکا، وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ میں یوں ہی نہیں جاؤں گی یہاں سے واپس۔ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرے سامنے بیٹھ جاؤ امی پلیز۔ میں نے کہا ہے بیٹھ جاؤ۔ شہیر ماں کے سامنے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے بھائیوں کی موجودگی میں نین تارا سے نکاح کرنا ہوگا۔ شہیر اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، یہ ظلم مت کریں مجھ پر۔ میں نہ اس لڑکی کو جانتا ہوں اور نہ ہی شادی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ 32 سال کے ہو گئے ہو، کبھی نہ کبھی تو شادی کرو گے نا۔ کتنے سالوں سے مجھے پیچھے لگایا ہوا ہے اپنے، مگر اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تمہارا نصیب میری نین کے ساتھ جڑا ہے۔ تمہیں قسم ہے اپنی ماں کی۔ وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ چکی تھی۔ میں بناؤں گی اسے تمہارے قابل۔ وہ تمہاری طرح زیادہ پڑھی لکھی نہیں، جانتی ہوں، مگر بہت سلجھی ہوئی ہے، خوبصورت ہے، میری بہن جیسے گن ہیں اس میں۔ تم خوش قسمت رہو گے ساری زندگی۔ وہ جو روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، وہ ماں کے آنسو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ امی پلیز میرا ہاتھ ہٹائیں۔ نہیں ہٹاؤں گی۔ کھاؤ میری قسم کہ تم کر رہے ہو یہ، ورنہ کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں۔ ٹھیک، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ شہیر سکندر زارا سکندر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سکندر شاہ اور زارا خان کی محبت کی شادی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے حد محبت تھی۔ انہوں نے شادی اپنے بھائیوں کے خلاف جا کر کی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ خاندان سے دور رہیں، مگر بہن کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جیسے شہیر کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ جو کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، شادی ہو گئی تھی اس کی۔ زارا سکندر نین تارا کو رخصت کر کے کراچی لے آ گئی تھی۔ امی، آپ نین کو میرے کمرے میں نہیں بھجوائیں گی فی الحال، میں اس وقت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ آگے بڑھی، اپنے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ کب تک؟ وہ جیسے سوالیہ ہوئی تھی۔ جب تک مجھے نہیں لگتا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے، مگر یہ آپ کا فیصلہ تھا، میرا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ میرے لائق نہیں۔ مجھے دیکھے، میں ایک پڑھا لکھا بزنس مین ہوں اور وہ کیا ہے؟ اینڈ گیس واٹ، چھوٹی ہے وہ مجھ سے بہت۔ میں 32 سال کا ہوں اور مشکل سے 21 سال کی ہوگی۔ اس میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ پہلے سے میرے قابل بنائیں۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے قابل نہیں؟ دیکھا ہے تم نے اسے؟ مجھے دلچسپی نہیں ہے کہ میں اسے دیکھوں۔ آپ کوشش کریں کہ اسے دور رکھیں فی الحال، یوں نہ ہو کہ میں اسے تکلیف پہنچاؤں۔ تم اسے تکلیف پہنچا کر تو دکھاؤ، میں معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ جتنی تکلیفیں نین نے دیکھنی تھیں وہ دیکھ چکی۔ میرے گھر میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے شہیر، ورنہ تمہاری ماں تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، یہ یاد رکھنا۔ وہ ماں کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ ہاں، میں تمہیں دھمکی دے رہی ہوں۔ آنے دو سکندر کو، وہی تمہیں سمجھائیں گے اور انہی کی بات تو تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ بابا سے بات کریں گی؟ کریں ان سے بات، میں بھی بتاؤں گا انہیں کہ کس طرح زبردستی آپ نے میرا نکاح کروایا۔ ہو تو گیا ہے نا؟ زارا سکندر نظریں چراتی ہوئی بولی۔ تو ٹھیک ہے نا، میں نے بھی بتا دیا آپ کو کہ دور رکھیں اسے مجھ سے۔ نین تارا نے نظریں اٹھا کر اپنی خالہ جان کو دیکھا تو زارا سکندر مسکرائیں۔ انہیں اپنی نین کی نیلی آنکھیں ہو بہو اپنی بہن جیسی لگیں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ کھڑکی سے باہر پرندوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو بہت آزاد لگتے تھے۔ یہ کتنے آزاد ہیں نا، بے فکر، بے خوف۔ تم بھی آزاد ہو؟ میں آزاد کہاں ہوں؟ پہلے دوسرے پنجرے میں تھی، یہاں ایک الگ پنجرے میں ہوں۔ یہ پنجرہ نہیں ہے، تم آزاد رہ سکتی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو۔ کیسے؟ شہیر کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ نے زبردستی کی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ زبردستی آپ نے کی ہے؟ مجھے پتا ہے، میں جانتی ہوں آپ امی سے مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں خالہ جان، مگر رشتے ایسے نہیں چلتے۔ تم بیوی ہو اب اس کی، صرف کاغذی طور پر، اور کچھ نہیں۔ کاغذ سائن کر کے آپ کسی کے لیے اس کا سب کچھ نہیں بن سکتے۔ یہ بہت مشکل ہے، بہت زیادہ۔
मैं चाहती हूँ तुम अपनी तालीम आगे जारी रखो और खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। बात रही शहीर की तो वो ज़रूर तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा। वो फीका सा मुस्कुराए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कभी न कभी उनको बीवी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो कबूल कर ही लेंगे मुझे, यही कहना चाहती है ना। मैंने ऐसा कब कहा? वो तुम्हें मोहब्बत देगा, ये याद रखना। वो मुस्कुराई तो उसकी मुस्कुराहट बेहद प्यारी थी। देखा जाएगा, देख लेना। ज़ारा सिकंदर ने अपने नैन के बाल सहलाए थे। उदास मत हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और कामयाब रखेगा। वो तेज़ तेज़ कदमों के साथ अपनी किताबें बैग में डालती नीचे उतर रही थी जब वो बुरे तरीके से किसी से टकराई। वो गिर पड़ती मगर वो उसे थाम चुका था। नैन और शहीर की आंखें टकराईं। वो समझ नहीं पाया कि खूबसूरत हुस्न और उसने आज तक देखा कैसे नहीं था। शहीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और वो यूं सामने खड़ी थी, नीली आंखें गोल गोल करती उसे देख रही थी। उसकी शर्ट को अपने मुट्ठियों में भींचे हुए उसने खुद को गिरने से बचाया था। देखकर नहीं जा सकती? वो अटक अटक कर बोला, जैसे समझ में ना आया हो कि क्या कहे। वो मुस्कुराई। हाँ, देखकर चल सकती थी, मगर मेरा पाँव। वो पाँव की तरफ देखते हुए बोली जो मुड़ गया था। वो बेसाख्ता झुकता चला गया। नैन को सदमा लगा। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, देखने दो, ज़्यादा चोट लग गई है शायद, पैर सूज गया है तुम्हारा। नहीं। शहीर ने बेसाख्ता उसका पाँव छुआ। उसके पाँव में पायल पहनी हुई थी। शहीर के छूने पर आवाज़ गूंजी। उसको लगा उसका दिल धड़का है। वो नज़रें चुराती हुई बालों को समेट रही थी। वो बेसाख्ता उठा, नैन को बेख्तियार अपने दोनों बाजुओं में उठाया। वो ठिठकी, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम्हारा पाँव मुड़ गया। शहीर, मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है। मैं कल की तरह आज भी लेट हो जाऊंगी। नहीं होगी लेट। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे बड़ी नरमी से सोफे पर लिटा चुका था। मुलाजमीन को आवाज़ देते हुए उसने फर्स्ट एड किट मंगवाई थी। वो बगौर उसे देख रही थी जो झुकते हुए उसके पाँव में जख्म को मरहम लगा रहा था। ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा ना? वो छूता था तो दर्द हो रहा था, मगर नैन नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ठीक नहीं हो तो आराम कर लो, कोई ज़रूरत नहीं कॉलेज जाने की। वो उसकी आंखों में देखता वो कह रहा था, मगर वो देख नहीं पा रही थी। वो बार बार नज़र झुकाती थी जो शायद शहीर को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसकी नीली आंखों में देखना चाह रहा था और वो बार बार नज़रें चुरा रही थी। मैं आ सकता हूँ? वो स्टडी टेबल पर बैठी अपने नोट्स बना रही थी जब मर्दाना आवाज़ पर पलटी। सामने शहीर को देखती हुई ठिठकी थी। आप? मैं आ सकता हूँ? उसके हाथ में जूस का गिलास था। वो मुस्कुरा भी ना पाई, उठ खड़ी हुई, चलती हुई उसके पास आई। जी आ जाए। वो अंदर आ गया था। ये अम्मी ने भेजा है, मैंने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। मेरी तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ? वो बालों को कानों के पीछे उड़सती हुई कहने लगी, आपको सुबह चोट लगी थी ना? वो पाँव की तरफ देखती मुस्कुराई। हाँ, मगर अब मैं ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। सुबह बहुत दर्द था मुझे, इसीलिए कॉलेज नहीं जा पाई। कोई मसला नहीं, कल चली जाइएगा, आज आराम करें। वो उसके हाथ से जूस लेती हुई बड़ी नर्वस हुई थी क्योंकि हाथ दोनों के एक दूसरे से टकराए थे। वो बेसाख्ता उसकी तरफ देखते हुए पलट गई। वो पलटी तो शहीर की नज़र उसके बालों पर गई। उसके बाल तो बेहद खूबसूरत और लंबे थे। वो कई सानियाँ उसके बालों को देखता रहा। शहीर ने सर झटका। नहीं। शहीर, तुझे क्या हो रहा है? उसके कमरे से बाहर न जाने फिर से पलट कर उसकी तरफ देखने लगा। कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं। वो आगे बढ़ गया था। वो घर में दाखिल हुआ तो वो ज़ारा सिकंदर के साथ किचन में मसरूफ़ थी। वो पानी पीने के गर्ज से किचन में दाखिल हुआ। वो जो नीले रंग के लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस, बालों को कानों के पीछे उड़सती, अपनी खाला की मदद करने में मसरूफ़ थी। उसके यूँ सामने से आकर खड़े होने पर ठिठकी तो ज़ारा सिकंदर मुस्कुराई। आ गए मेरे बच्चे? हाँ, आ तो गया हूँ। मगर वो पानी पीते हुए ज़ारा को नहीं, अपनी बीवी को देख रहा था जो आजकल उसके हवासों पर सवार थी। वो ऑफिस में होता था, वो याद आती रहती थी। वो घर आता था, उसे देखने की ख्वाहिश पैदा होती थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा। वो बस सामने खड़ी लड़की को देखते हुए यही सोच रहा था, क्यों देख रहे हैं? वो बेसाख्ता मिनमिनाई तो वो उसे और गौर से देखने लगा कि ऐसा क्या था जो उसका सुकून तबाह कर रहा था। कुछ नहीं। वो पानी पीता हुआ जैसे बाहर बढ़ गया और उसके जाते ही नैन ने जैसे सर उठाया और बगौर उसकी जाती हुई पुश्त को देखती मुस्कुराई। वो खुद नहीं जानती थी वो क्यों मुस्कुराई थी और क्यों शहीर की नज़रें बुरी नहीं लग रही थी। तुम सुबह नैन को कॉलेज छोड़ देना। हाँ, मैं छोड़ दूंगा। वो बेदहानी में बोला तो ज़ारा सिकंदर मुस्कुराई। ये वही बेटा था जो शुरू में उसे कहीं भी लेकर जाना या छोड़ने पर चिढ़ जाता था, और अब जैसे बेदहानी में भी उसका ध्यान नैन के नाम पर आ जाता था। क्या हो रहा है बरखुरदार? उन्होंने अपने बेटे के कांधे पर हाथ रखा था। क्या हो रहा है? वो पलटकर माँ की तरफ देखने लगा। आजकल बड़ा नैन पर प्यार आ रहा है तुम्हें। मुझे प्यार आ रहा है? अम्मी, मैंने तो नहीं कहा ऐसा कुछ। ख्याल बहुत रखते हो उसका, मैंने देखा है। नैन बता रही थी तुम उस रात जूस लेकर गए थे उसके कमरे में। मैंने तो नहीं दिया था वो जूस तुम्हें, तो फिर अपनी तरफ से ले गए थे। अम्मी प्लीज़। वो चेहरा मोड़ता वो बोला, उसे चोट लगी थी, मुझे फिक्र थी उसकी। फिक्र क्यों थी? शहीर को खुद समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। अच्छा ना, ठीक है, मैं सुबह ले जाऊंगा उसे। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया था और वो पीछे हंस पड़ी। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलती बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, फीका सा सलाम किया था। शहीर ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वालेकुम अस्सलाम। वो हल्की पिंक रंग की लॉन्ग 3 पीस सूट में मलबूस थी। बहुत प्यारी लग रही थी। वो जैसे नजरें पलटना भूल गया। एक गिल्टी थी जो उभर कर मादूम हुई थी। प्यारी लग रही हो, वो तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया।
नैन ने बेख्तियार नजरें उठाकर उसे देखा। दोनों की नजरें मिली। वो पत्थर का हुआ, नीली आंखें बहुत कुछ कहती थी। थैंक यू। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। सारा रास्ता वो वक्फे वक्फे से उसे बड़े गौर से देखता रहा और वो उसकी नज़रों से गायब होती रही। कॉलेज के बाहर गाड़ी रोकते ही वो उतरी। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, वो बेसाख्ता सा बोला। नैन के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी तो शहीर को लगा उसने उससे ज़्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट कहीं नहीं देखी। वो पजल सा हो गया था और वो आगे बढ़ गई थी। वो कॉलेज से बाहर निकली तो उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। नैन की आंखें सवालियाँ हुई। तभी ग्लास विंडो खोली। सामने बैठे लड़के को देखकर वो ठिठकी। 2-3 कदम पीछे हुई। तुम? हाँ मैं। क्यों? मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? नहीं आ सकते, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। और प्लीज़ वापस चले जाओ, वरना मैं मामू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम मेरे आगे पीछे घूमो। वो मुस्कुराया। गाड़ी से उतरकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में कितना पागल हूँ, मगर मैं नहीं हूँ और ये तुम भी जानते हो। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आती हूँ, इसके अलावा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसे कामों में। हटो मेरे रास्ते से। तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? पीछा करने पर बहुत कुछ पता चल ही जाता है। वो जैसे उसके कानों में ये बात उतार रहा था। अभी वो और कुछ भी कहता जब नैन को सामने से ही शहीर की गाड़ी आते हुए दिखाई दी। उसकी आंखें फैली थी जैसे जैसे शहीर की गाड़ी रुकते ही वो बेसाख्ता गाड़ी से उतरा था, क्योंकि दूर से ही उसकी नज़रें नैन के साथ खड़े हुए मर्द पर पड़ गई थी। वो आगे बढ़ा। अरहम पलटा। शहीर और अरहम की नज़रें मिली। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अपनी कज़न से मिलने आया था। घर को सूना कर गई है ना, इसीलिए। नैन ने देखा शहीर की मुट्ठियाँ भींची थी। आइंदा। वो आगे बढ़ा और अरहम की कॉलर पकड़ी। नैन ने बेख्तियार दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे। अगर तुम मुझे अपनी बीवी के आस पास नजर आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझ आई मेरी बात? क्या करोगे तुम? वो पूछ रहा था। शहीर ने उसे गाड़ी से लगाकर अपनी गिरफ्त उसके गिरेबान पर सख्त की। जान से मार दूंगा। नैन आगे बढ़ी। शहीर छोड़ें प्लीज, शहीर प्लीज। नैन तुम दूर हटो, वो बेख्तियार बोला तो वो चंद कदम दूर हुई। अरहम मुस्कुराया। मैं जानता हूँ तुम इसे अपनी बीवी नहीं मानते, छोड़ दो इसे, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा वैसे भी। शहीर को और गुस्सा आया। वो जैसे अपना गुस्से को बर्दाश्त करते हुए उसे मारते मारते रुका था। नैन उसे दोनों बाहों से थामे हुए दूर कर चुकी थी। अरहम गाड़ी में बैठता हुआ आगे बढ़ गया। अरहम खान नैन के बड़े मामू जवाद खान का बेटा था, जो बचपन से उसे परेशान करता हुआ आया था। वो बहुत खूबसूरत थी, वो जानती थी, और वो बचपन ही से उसकी खूबसूरती उसके लिए मसले का बायस बनी हुई थी। शहीर पलटा और दोनों की नज़रें मिली। क्या कर रहे थे आप? कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम बीच में क्यों पड़ती थी? मुझे डर लग रहा था। मेरे साथ चलो। उसका हाथ थामे वो उसे गाड़ी तक ले जा रहा था और वो इस हाथ की गिरफ्त को देख रही थी जो बेहद मजबूत था। आप बात करें मामा जान से, अगर उनसे अपना बेटा नहीं संभल रहा तो मैं संभालता हूँ उसे। तुम कुछ नहीं करोगे। ज़ारा सिकंदर जैसे उसको समझाने लगी। क्यों समझा रही है मुझे? आपने खुद फंसाया था ना मुझे वहाँ। अब नहीं संभल रहा मैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी तक जाने की? उसे क्या लगता है कि मैं मर गया हूँ? वो सोच भी कैसे सकता है? अम्मी मेरा खून खोल रहा है। आप खुद मामा से बात करें। अगर नहीं संभल रहा उनसे अपना बड़ा बेटा तो कह दें, हम संभाल लेंगे। नैन जो कमरे में दाखिल होने लगी थी, शहीर की ये सारी बातें सुनते चुप करके दहलीज पर खड़ी रह गई। वो पलटा तो दोनों की नज़रें मिली। और तुम कुछ दिन मत जाओ कॉलेज, मेरे एग्जाम्स हैं। कुछ दिनों में वैसे भी ख़त्म हो जाएगा कॉलेज, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। वो बेसाख्ता बोली। तो कोई ज़रूरत नहीं अकेले जाने की, मेरी जिम्मेदारी है ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया था और नैन के चेहरे पर जैसे मुस्कुराहट सी बिखरी थी, जो ज़ारा सिकंदर ने बखूबी देखी थी। और तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? इधर मैं परेशान हो रही हूँ। ऐसे ही मेरी फ़िक्र हो रही है आपके बेटे को। मुझे तो लगता है उन्हें कभी मेरी फ़िक्र नहीं हो सकती थी। मैंने कहा था ना वो तुमसे बहुत मोहब्बत करेगा। अब मोहब्बत की बात तो नहीं की मैंने खाला जान, मेरे पास आओ। वो अंदर चली गई थी अपनी खाला के पास। कुछ गलत सोचने की ज़रूरत नहीं। ज़ारा सिकंदर उसके बाल सहलाती हुई कहने लगी। अगर आज वो तुम्हारी परवाह कर रहा है तो कल मोहब्बत भी करेगा, बेफिक्र रहो। जब तक मेरे सामने तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाएगा नहीं ना तो मैं रुख्सत नहीं करूंगी उसके पास। नैन अपनी खाला का अंदाज सुनकर हंस पड़ी थी। बैठो, मैं खुद बैठ जाऊंगी। आप क्यों खड़े हैं? दरवाज़ा खोला है मैंने गाड़ी का, बैठ जाओ। शहीर कुछ नाराज़ लगता था। वो खामोशी के साथ सीट पर बैठ गई। वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गुस्सा क्यों है? मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया तुमने। एग्ज़ाम कब हैं तुम्हारे? बस 1 हफ्ते में। अच्छी बात है, तुम आज जा रही हो, कुछ दिन छुट्टी के बाद बस एग्ज़ाम्स पर जाओगी डायरेक्ट। मैं ऑफ नहीं कर सकती, मैंने कहा ना। आपको लगता है वो मेरे पास आएगा? मैं नहीं आने दूंगी। ऐसा करें, आप ही लेने आइएगा अगर आपको शक है मुझ पर। मुझे कोई शक नहीं है तुम पर। नैन की आंखों में मासूमियत उतरी। वो उसके अंदाज पर कुछ डरी थी तो वो खामोश हुआ। आई एम सॉरी, मैं बस शायद कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ पोजेसिव। मेरे लिए? वो सवाल करने लगी तो वो पलटकर उसकी आंखों में देखने लगा। क्यों? मैं तुम्हारे लिए पोजेसिव नहीं हो सकता? हो सकते हैं, मगर अजीब सी बात है, मेरे लिए पोजेसिव हो रहे हैं। वो नज़दीक हुआ। नैन ने सीट से टेक लगाई। वो उस पर झुका। हाँ, तुम्हारे लिए पोजेसिव हो रहा हूँ क्योंकि बीवी हो तुम मेरी। याद है या भूल गई हो? उसकी नीली आंखों में देखता उसके बालों की लटों को कान के पीछे उड़स गया। नैन के तो होंठ ही लरस गए थे। उसके एग्जाम्स हो चुके थे। जब तक उसके एग्जाम्स चल रहे थे वो खुद ही उसे छोड़ने जाता था और लेने भी आया था। नैन उसकी इस कदर फिक्र पर अश अश कर उठी थी
वो जो उसकी तरफ देखता नहीं था, अब उसकी सारी तवज्जो उसकी तरफ थी। वो घर से कितने बजे निकलती है, कितने बजे वापस आती है, घर में क्या करती है, कहाँ बैठती है, कहाँ उठती है, सब पर नज़र होती थी शहीर की। और वो जैसे वाकई उसके लिए बड़ा पोजेसिव हो रहा था। भाई समझाएं अपने बेटे को, आइंदा मेरी बहू का रास्ता ना काटे, वरना आप शहीर को जानते हैं, वो कोई मसला करेगा फिर आपके सारे ख़ानदान को बुरा लगेगा। मैं समझाता हूँ अरहम को, वो कभी नहीं रुकेगा रास्ता नैन तारा का। नहीं। नैन ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए अपने बड़े मामू को देखा, जिनके घर में उसे हमेशा तकलीफ़ें मिली। जवाद खान उसकी नज़रों से उलझते हुए उठ खड़े हुए। सारा तुम फिक्र नहीं करो, मैं अरहम को समझाऊंगा। समझाइए उसे। आप पिछले माह उसे ऑस्ट्रेलिया भेज रहे थे ना, भेज दें। शहीद को अबू पाकिस्तान में देखा तो मुझे नहीं लगता कि वो उसे बख्शेगा। अपने बेटे को अपना काबू में रखना, मैं खुद ही अरहम को ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा। वो नहीं करेगा परेशान नैन तारा को, तब तक काबू में रहेगा वो, जब तक आपका बेटा हद नहीं भूलेगा। अम्मी, नैन तारा को कॉलेज ख़त्म हो चुका है, वो आगे पढ़ना चाहती है। ज़ारा सिकंदर बेसाख्ता न्यूज़पेपर पढ़ती हुई बोली थी। शहीर मुस्कुराया। जानबूझकर कर रही हैं ना आप मेरे साथ? ज़ारा ने पलटकर बेटे को देखा। क्या कर रही हूँ जानबूझकर? यही कि वो आगे पढ़ना चाहती है क्योंकि मैं रुखसती चाहता हूँ। उसे पढ़ना है आगे, वो पढ़ती रहेगी मगर रुखसती के बाद। रुखसती क्यों चाहते हो तुम? वो बीवी है मेरी, हम एक ही घर में रहते हैं, मेरा उससे दूर रहना मुझे मुश्किल लग रहा है। वो नज़रें चुराते हुए माँ से कह रहा था। वो जैसे कह रहा मुस्कुराई। मगर मैं यूं ही रुखसती नहीं करूँगी जब तक तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं हो जाती, या तुम उसके बगैर रहने का तस्वुर भी न कर सको, तभी होगी रुखसती, वरना ऐसे नहीं कराऊंगी। वो न्यूज़पेपर पढ़ती हुई हाथ नफ़ी में हिलाने लगी। अम्मी, वो बीवी है मेरी, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ कि रुखसत कर दें उसको मेरी तरफ, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। वो बेसाख्ता सा बोला था। तो ज़ारा सिकंदर मुस्कुराई। ऐसे नहीं बरखुरदार, सिकंदर पाशा आ रहे हैं कुछ अरसे में वापस, अपने बाबा को लौटने दो, वही करवाएंगे धूमधाम से शादी। मैं नहीं करवा रही, शादी हो चुकी है मेरी, मैंने कहा ना बरखुरदार। शहीर ने जैसे गहरा सांस लिया। मेरा हाथ छोड़े, बैठ जाओ मेरे साथ। मैं नहीं बैठ सकती, आप खाला जान से बात कर लें, जो भी बात करनी है। नैन, मैंने कहा है मेरे साथ बैठो। शहीर का यूं उसका नाम लेने पर वो बेसाख्ता उसके पास बैठ गई। शहीर उसके नज़दीक जाते हुए उसके दोनों हाथ थामते उसे अपने नज़दीक और पास खींच चुका था। क्या कर रहे हैं? नैन मिनमिनाई। तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ कि मैं तुम्हारा क्या हूँ, बीवी हो तुम मेरी। अम्मी से बात करो रुखसती के लिए। मैं नहीं कर सकती, वो अटकी। क्यों नहीं कर सकती? क्या मुझसे प्यार नहीं करती? नैन ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। क्या आप करते हैं मुझसे प्यार? वो अटकी थी ये कहते हुए। शहीर ने नज़रें चुराई। ये जानना ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए, जितना ये जानना ज़रूरी है कि तुम क्या चाहती हो। वो उठ खड़ी हुई। चाहती थी मगर वो उसे अपने दोनों बाहों में भरते हुए बिठा चुका था। कहाँ जा रही हो? उसके इस कदर पास आने पर लर्जी। इन दोनों के होंठ बहुत पास थे। वो दूर जाना चाहती थी मगर नहीं जा पा रही थी। शहीर ने हाथ आगे करते हुए अपनी उंगली उसके होंठों पर फेरी तो नैन का पूरा वजूद जलजले की जद में आया। शहीर, क्या कर रहे हैं? तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ अपना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहा, मेरे पास आ जाओ। वो बड़ी नरमी से उससे दूर हुआ था, जैसे नैन का सांस बहाल हुआ। एक गिल्टी थी जो उभर कर मासूम हुई और शहीर उस पर मुस्कुराया। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम सबसे ज़्यादा महफूज मेरी पनाहों में हो। मेरे जीते जी कोई तुम्हारा बाल भी पाका करके दिखाए ज़रा, लाश बना दूंगा मैं उसको। ये कहते वो उठकर चला गया और नैन तारा के इर्द गिर्द जैसे शहीर के अल्फाज गूंजते रहे। उसको आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना ख़ास किसी ने महसूस नहीं करवाया था जितना ये शख्स इन चंद माह में करवा गया था। क्यों मेरे सामने यूँ बैठी हो? शहीर ने आपसे रुखसती की बात की थी, वो सर झुकाए कह रही थी। ज़ारा सिकंदर मुस्कुराई। क्यों, शौहर की तरफदारी करने आई हो? अगर वो रुखसती चाह रहे हैं तो खाला जान आप रुखसत कर दें मुझे। वो हंस पड़ी। पगली, मेरी तरफ देखो। देख क्यों नहीं रही हो? ऐसे ही बस, अगर वो चाह रहे हैं तो मैं चाहती हूँ वो तुमसे बेइंतहा प्यार करे। ऐसे ही नहीं दूंगी तुम्हें, उसको तड़पने दो। और तुम भी पगली। वो उसके सर पर चपत मार चुकी थी। इतना शौहर का फर्मा बरदार ना बनो कि उसने कह दिया कि मेरे पास आ जाओ तो अब जा रही हो उसके पास। रुक जाओ थोड़ा सा, कह दो हमारे बड़े जो फैसला करेंगे तब तक तुम चुप हो। कह दो ये मेरा मसला नहीं। आप चाहती हैं कि वो परेशान हो, मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो। वो बड़ी मासूमियत के साथ कह रही थी। नैन तारा यूं भी बहुत मासूम थी, बहुत प्यारी, दिल बहुत नरम था उसका, पल में पिघल जाता था। मगर वो तो उसको कई महीनों से नोट कर रही थी। वो जो उसके लिए धीरे धीरे बदला था, वो भी तो खुद को उसके लिए बदल रही थी। जैसा वो चाहता था वैसी ही रहती थी, बनती थी, संवरती थी, उसके मुताबिक खुश रंग पहनती थी। नैन को वैसे भी तैयार होना था, खूबसूरत लगना पसंद था। वो यूं भी बेहद हसीन थी। तभी कमरे का दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। वो दोनों जो आपस में बातें कर रहे थे पलटी। शहीर था। अगर आप दोनों ने मेरे खिलाफ मंसूबे बना लिए हों तो मैं अंदर आ जाऊं? नैन ने जैसे हंसी दबाई थी। हाँ आ जाएं जनाब, आपसे क्या पर्दा। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ माँ के सामने बैठ गया। 1-2 दिन के लिए कराची जा रहा हूँ काम से। वो कह तो ज़ारा सिकंदर से रहा था मगर देख नैन को रहा था जैसे उसे बता रहा हो। ख्याल रखिएगा घर का, अपना और नैन का। ये कहते हुए शहीर ने गहरा सांस लिया। ज़ारा सिकंदर हंस पड़ी। वैसे क्यों जा रहे हो? काम है, बाबा कुछ दिनों में वापस आ रहे हैं। क्या? वो तो अगले माह आने वाले थे ना। हाँ अब जल्दी आ रहे हैं। तुमने बुला लिया उनको? बड़े तेज़ हो। वो हंस पड़ा, मध्यम सी हंसी। हाँ बुलाना पड़ा क्योंकि मेरा जीना यहाँ मुश्किल हो रहा है। नैन ने जैसे चेहरा मोड़ा।
वो आ जाएंगे कुछ दिन में इंशाल्लाह, मेरी वापसी उनसे पहले होगी। आप बस खुद को तैयार रखें, अपनी लाडली को रुखसत करना है आपने। धत, कितने तेज़ होना बरखुरदार। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा बेटा यूं भी पागल हो सकता है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मगर जो भी हो रहा है अब मैं रह नहीं सकता। बस वो लफ्ज़ों को जैसे तोड़ मरोड़ कर सही से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। उठ खड़ा हुआ तो नैन भी उठ खड़ी हुई। ज़ारा सिकंदर मुस्कुराई। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं मना नहीं करती, मेरे साथ चलो बाहर। वो ज़ारा की तरफ देखकर कहने लगा तो वो उसी के साथ कमरे से बाहर जाने लगी। ज़ारा सिकंदर पीछे से उन दोनों को जाता हुआ देखकर मुस्कुराई थी। कब आएंगे? वो बालों को कानों के पीछे करते हुए सर झुकाए कह रही थी। वो चलती चलती आगे निकल गई। जब शहीद ने उसका हाथ थामा और हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा तो उसके सीने से लग गई। नैन का सांस तेज हुआ। जल्दी आ जाऊंगा। मेरा इंतज़ार करोगी? हाँ, शदीद इंतज़ार करूंगी। मुझे नहीं पता कि यह वक्त कैसे गुजरेगा, वो मध्यम अंदाज में अटक अटक कर कह रही थी। शहीद मुस्कुराया। तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस अपना ख्याल रखना है। घर से बाहर मत निकलना जब तक हम पाकिस्तान में है। कुछ एहतियात करो। मामा से बात हुई थी मेरी, वो कुछ दिनों में अरहम को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं। नज़रें उठाकर उसे देखने लगी। मेरे लिए आप बहुत फिक्रमंद रहते हैं ना? हाँ बहुत। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बारे में इतना हसास क्यों हो गया हूँ, मगर नैन, शहीद ने उसके रुखसार पर हाथ रखा, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो, बहुत ज़्यादा हो गई हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई औरत मेरे दिल में यूं भी बस सकती है। नैन ने उसके सीने पे हाथ रखा। क्या सच में? रुखसती के बाद बताऊंगा। उसके रुखसार पर उंगलियां फेरते हुए शरीर अंदाज में बोला तो वो कुछ कदम दूर हुई। अब जाएं, वो सर झुकाए कह रही थी तो वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। रुकें। वो रुक गया, पलटा। नैन की नज़रें उठी, दोनों की नज़रें मिली तो चार आंखें एक हुईं। स्याह आंखें नीली आंखों में घुल मिल गईं। जल्दी आइएगा, वो बोली तो शहीद मुस्कुराया। क्यों जा रही हो कॉलेज? आज काम है, आखिरी दिन है, यूँ समझ लें। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो जमा करवाने हैं। शहीद को मत बताइएगा, मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ, ड्राइवर के साथ ही वापस आ जाऊँगी। उसने मना किया है। मत बताइएगा ना। फिर वो खाला जान की तरफ देखते हुए प्यार से और लाड से बोली, अच्छा फिर मुझसे वादा करो कि इधर उधर नहीं जाओगी, ठीक है ना? मुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी है तुम दोनों की रुखसती की। वो मासूम से अंदाज में बोली। तो मान गई आप? मानना पड़ा, बेटा है मेरा अकलौता सोबी। उन्होंने नैन की थोड़ी के नीचे हाथ रखा। मेरी प्यारी सी नैन, बहुत खुश रहेगी उसके साथ। मुझे यकीन है मेरा बेटा तुम्हें पलकों पर बिठाएगा, मैं जानती हूँ। मैं बस होकर आई, मेरा इंतजार कीजिएगा, साथ चलेंगे शॉपिंग के लिए, ठीक है मेरी जान? उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। ज़ारा सिकंदर को अपनी नैन तारा हू बहू अपनी बहन गुलबानो जैसी लगती थी और उसके जितनी ही अजीज भी थी। वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाकर कुछ ही देर में फ्री हो गई। अपनी किसी दोस्त के साथ चलती हुई कॉलेज से बाहर निकल रही थी। गाड़ी में बैठते हुए उसने अपनी दोस्त को खुदाफिज कहा और इधर उधर देखती हुई रास्ते को घूरे जा रही थी। ड्राइवर ने रास्ता तब्दील किया तो वो ड्राइवर की तरफ देखने लगी। कहाँ चल रहे हो? मैडम साहिबा, वो रास्ता बंद है, हमें दूसरे रास्ते से घर जाना पड़ेगा। ठीक है। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर शहीद था। कहाँ हो? घर पर। वो अटक अटक कर बोली, अच्छा जी, मुझे मिस कर रही हो? मैं आज वापस आ रहा हूँ, बहुत याद आ रही हूँ। वो मध्यम अंदाज में बोला जैसे उसे खुद पर यकीन ना हो। वो इतना याद क्यों आ रही थी? नैन मुस्कुराई तो उसकी आंखें भी मुस्कुराईं। क्या हो रहा है आपको शहीद? कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? शहीद हंस पड़ा। मोहब्बत कैसे होती है? वो पूछने लगा था। नैन खला में घूरती हुई सोचने लगी। दिल धड़का। पता नहीं, कहते हैं दिल अगर दिल को धड़कने दे बेसाख्ता बेवजह तो उसे मोहब्बत कहते हैं। वो अपने दिल पर हाथ रखती हुई कह रही थी, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? शहीद जो ड्राइव कर रहा था उसने अपना हाथ दिल पर रखा। पता नहीं, मगर दिल धड़क रहा था, धड़कने दे रहा था, सांसों में इर्तियाश पैदा हुआ था। वो मुस्कुराया मगर उसने नैन को बताया नहीं। नहीं, मेरा दिल तो नहीं धड़क रहा, वो तिरछे अंदाज में बोला तो नैन ने सर झुकाया अफसोस के साथ। खुशकिस्मत लोग होते हैं वो जिनको प्यार से प्यार मिलता है, वरना कई ऐसे हैं जो इससे बेखबर हैं, इस एहसास से भी और मोहब्बत से भी। शहीद मुस्कुराया। यानी उससे मोहब्बत हो गई थी। वो बताएगा, वो ज़रूर बताएगा, मगर ऐसे नहीं। उसकी माँ ठीक कहती थी, जब उसे पागलों की तरह नैन से मोहब्बत होगी वो तब उसको उसके हवाले करेंगे। और शहीद का वैसा ही हाल था, मगर वो नैन को यूं नहीं बताना चाहता था। वो चाहता था वो सामने बैठी हो और उसके आगे झुक जाए। ठीक कह रही हो, हम इतने खुशकिस्मत कहाँ कि हमें मोहब्बत हो जाए। वो नम सा मुस्कुराई। अच्छा, खैरियत से आए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे भी तुम्हें देखने का, महसूस करने का इंतज़ार है। वो मध्यम अंदाज में अटक अटक कर बोल गया तो वो फिर से ब्लश हुई और बेअख्तियार फ़ोन कट कर गई। तभी गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। क्या हुआ? वो ड्राइवर की तरफ देखने लगी जो आगे की तरफ देख रहा था। उनकी गाड़ी का रास्ता एक सफ़ेद रंग की गाड़ी ने काटा। वो बगौर सामने देखते हुए इधर उधर देखने लगी कि कौन था जिसने रास्ता काटा था। हर तरफ सन्नाटा था। रोड पर सिर्फ दो गाड़ियाँ थीं, आमने सामने। नैन का जैसे सांस तेज हुआ था, नीली आंखें हैरत में मुब्तला थीं और कुछ जैसे समझ नहीं आ रहा था। बाबा जान, ये कब आए? वो बाप के गले लगते हुए माँ की तरफ देखते पूछ रहा था। बस कुछ देर पहले, मैं बस नैन का इंतजार कर रही थी। वो अटक अटक कर बोली तो शहीद जो बाप से बातों में महव होने लगा था खामोश हुआ। नैन कहाँ गई है? ज़ारा सिकंदर जैसे नजरें इधर उधर घुमाने लगी। उन्हें अब टेंशन हो रही थी। वो गई थी कॉलेज कुछ काम से, मैंने मना किया था,
आपको कि उसे मेरे बगैर अकेला ना छोड़ें। मैं आ जाऊंगा, जो भी काम है देख लेंगे।